Hello everyone. Let us start another very important topic of business studies, that is motivation. What do you mean by motivation? First of all, let us understand the motive. Motive is us to do something, and motivation is inspiring or inducing people to do a particular work. If I say after the end of this video you will get 50 rupees Paytm cash, then that is again a part of motivation. Employees perform to the best of their abilities if they are motivated, they are dedicated to the organization. So, to get their dedication, for the employees whose morale is low, we are giving him or we are giving them various offers in the form of incentive, so that the willingness of work due to that particular greed or due to that particular incentive rises within the employee automatically. Motivation means a process of stimulating people to action to accomplish desired goals. अब ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन आपको अलग अलग टाइप के लालच देती है कि आप काम करके कंप्लीट कर देंगे, आप काम को पूरा कंप्लीट कर देंगे तो आपको हम ये देंगे, आप काम को कंप्लीट कर देंगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपकी सैलरी में 10% इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के इंसेंटिव्स मिलते हैं, जैसे कि एक सेल्समैन को मिलता है कि इफ़ यू गेट द टारगेट सेल्स अचीव देन यू विल गेट दिस 10% एज योर बोनस। सो वहाँ पे क्या है, आपकी सैलरी में 10% बोनस जो मिल रहा है दैट इज योर इंसेंटिव, एंड दैट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव जो कि ऑर्गेनाइजेशन देती हैं अपने एम्प्लॉयज को टू अचीव द टारगेट। सेम वे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मोराल क्या था। मोराल था विलिंगनेस टू डू वर्क, कि जब आप अपने अंदर से काम करते हैं, अपने अंदर आप एक विलिंगनेस लेके आते हैं कि आपको वो काम करना है, जब आपका अंदर से खुद मन होता है कि येस यू वांट टू बिकम समथिंग, दैट इज अ इनबिल्ट एबिलिटी। मोराल इज अ इनबिल्ट एबिलिटी, whereas motivation is generated through various types of incentives by giving different types of offers, different types of incentives, whether it is financial or whether it is non-financial. Now let us start with the characteristics of motivation. What are the characteristics? Motivation is a psychological phenomenon. How? That various types of motivations are there. Some get attracted towards financial motives and some get attracted toward non-financial motives. It influences the behavior of an employee that what will affect him more, whether it is financial or whether it is non-financial. For example, for a person, social recognition or social respect is a priority thing rather than getting money in return for the work that he or she is doing. Motivation is a continuous process. It is not a one-day process. It is a continuous process wherein a person needs to be motivated again and again, as the motivation and the motives once accomplished become dead or become achieved. So you have to keep on motivating a particular person. It is not a one-day process. It is a ongoing process. As needs never end, so motivation also never ends. There are various needs that rise again and again, so you need to motivate a person to achieve those needs and those particular targets so that they are achieved on time and they are, or employees are giving you better result. Motivation is a goal directed behavior, as we know that every organization follows a goal directed behavior. यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन आपको मोटिवेशन इसीलिए देती है कि उसके टारगेट और गोल्स टाइम पे अचीव। अब वहाँ पे आपके लिए टारगेट सेट कर दिए जाएंगे कि अगर आपने इतना टारगेट अचीव किया तो उसके आपको 10% मिलेंगे, इफ़ यू विल अचीव मोर देन दैट पर्टिकुलर टारगेट यू विल गेट 15%. सो they are just increasing the greed of a person to get extra and extra for doing that particular or achieving that particular goal. As already discussed, motivation can be financial and non-financial. Financial can be in the form of money. Non-financial can be prestige, social recognition, as well as a challenging job is sometimes also a part of motivation. Now another important point that comes is motivation is a complex process. It is very difficult to understand what will motivate a person. Motivation is a complex process. Why? The reason is that the needs of people are different, so are their motivation needs. Some have a different type of need and they get
they have needs of you can say money, some have needs of recognition. So motivation is a complex process wherein understanding the need and understanding the motive of work or working of a particular person in the organization is a complex process. So a person has or the organization has to study the employees well to understand that what is the motive of their work and why they are working in our organization. Is it for just only money, or is it for money as well as recognition as well? Now let us differentiate between morale and motivation. First of all, morale is related to sentiments and emotions, whereas मोटिवेशन इज इंस्पायरिंग पीपल टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, यानी कि किसी को इंस्पायर करना इज मोटिवेशन, वेयर एज विलिंगनेस टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, उस जॉब को करने का अंदर से मन होना इज मोरल. मोरल इज अ ग्रुप एफर्ट, वेयर एज मोटिवेशन इज अ इंडिविजुअल एफर्ट. Motivation can be created through penalties and rewards both, whereas morale can be only created through positive means. You cannot harass a person, you cannot threaten a person to do a particular job, whereas motivation has both rewards as well as threats or penalties. Well motivated tends to have high morale, but a person with a high morale may or may not be highly motivated. Now, what is the importance of motivation to the organization? Higher efficiency. If you motivate the employees in the organization, you get better efficiency and better results. Then optimum utilization of resources, the resources get fully utilized and you get less wastage of resources. Reduction in labor turnover. Now labor turnover, again the employees leave the organization less and the labor turnover gets reduced. Better industrial relations means that labor gets happy with the organization. The labor thinks that the organization is thinking for them and they are asking for the work and results and they are giving us the benefits for the same. So वहाँ पे labor relations जो organization के लिए labor की सोच होती है वो वहाँ पे बदल जाती है. वो ये सोचते हैं organization अगर काम ले रही है तो उसके बदले में हमको फ़ायदा या हमको वहाँ पे benefit भी दे रही है. Easier selection. अब वहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको बेटर इंसेंटिव्स देती है वही ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली लेबर्स की चॉइस होती है और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर जाके काम करना पसंद करते हैं. एंड फैसिलिटेट चेंज इफ़ यू गिव देम एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन. और अगर आप एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली मोटिवेट कर देते हैं तो कोई भी चेंज अगर आप वहाँ पे लाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो आप ईजिली अकम्प्लिश कर सकते हैं. That any type of change that you want to implement in the organization, you can implement it in a easier way. जैसे कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव करना चाहती है तो आपके एम्प्लॉयज़ का मोटिवेट होना वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. रीज़न बीइंग इज़ दैट अगर आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा तो वहाँ पे वो अच्छे से आपके रिजल्ट्स और आपके मोटिव को समझेगा या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को समझेगा और गोल को समझने के बाद वो हाईली रिस्पॉन्सिबल होके काम करेगा और वहाँ पे वो मोटिवेटेड होके जब काम करेगा तो डिज़ायर्ड गोल्स और डिज़ायर्ड रिजल्ट आप आसानी से अचीव कर सकते हैं. Now there are two types of factors which influence motivation, that is financial and non-financial, that means monetary and non-monetary incentives. अब monetary incentives में आपका financial incentives होते हैं जिसमें कि आपको directly और indirectly reward जो मिलता है वो in form of money मिलता है, जैसे कि in form of wages, salary, bonus, leave, house facility, medical reimbursement, pension etc. तो यहाँ पे सारे benefits आपके directly या indirectly money से related होते हैं, whereas आपके non-financial incentive में आपका यहाँ पे मनी से कोई लेना देना ही नहीं होता है, जिसमें कि चैलेंजिंग जॉब, कंपटीशन, एप्रिसिएशन ऑफ वर्क, सोशल रिकग्निशन एज वेल एज नॉलेज ऑफ रिजल्ट एंड सजेशन स्कीम्स, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये टाइप के इंसेंटिव आपको दिए जाते हैं. तो आपका यहाँ पे मनी का कोई लेना देना नहीं होता, यहाँ पे केवल आपका सोशल रिकग्निशन एज वेल एज योर रेपुटेशन से मेन मतलब होता है. दैट मीन्स दिस इज नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव. नाउ इफ वी डिफरेंशिएट यानी कि दोनों के बीच में अगर अंतर करना चाहें तो यहाँ पे अंतर क्या होगा, आपका मनी इन्वॉल्व होता है मॉनेटरी में, नॉन मॉनेटरी में मनी इन्वॉल्व नहीं होता. वेयर एज मॉनेटरी इज टैंजिबल, वेयर एज नॉन मॉनेटरी इज इनटैंजिबल.
मॉनेटरी इंसेंटिव यूज टू सेटिस्फाई द लोअर लेवल ऑफ नीड दैट इज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, यानी कि पैसे से आप वो चीज़ें खरीद सकते हैं। वेयर एज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से आप वो चीज़ें कभी खरीद नहीं सकते, जैसे ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट एज वेल एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें आप खरीद नहीं सकते। मॉनेटरी इंसेंटिव जो दिया जाता है वो आपके वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए एज वेल एज नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है। वेयर एज आपका नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव वो मैनेजरियल पर्सनल एज वेल एज आपके सप्लीमेंट एंड सपोर्ट टू नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के लिए दिया जाता है, यानी कि आपकी सैलरी में भी हाइक दे दिया गया प्लस आपको एक पोस्ट भी रिवॉर्ड कर दी गई। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, जैसे कि रिकग्निशन और स्टेटस, कि आपको सोसाइटी में रिकग्निशन दे दी गई, आपको कंपनी में रिकग्निशन दे दी गई, एज वेल एज आपको एक मैनेजर की पोस्ट दे दी गई, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ स्टेटस। देन जॉब सिक्योरिटी, आपसे ये कह दिया गया कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के नाउ आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अब एक परमानेंट पार्ट हैं और आपको इस एम्प्लॉय से या इस ऑर्गेनाइजेशन से अब नहीं निकाला जाएगा। देन दैट इज गिविंग यू अ जॉब सिक्योरिटी दैट यू आर अ परमानेंट मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। देन गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो अफेक्ट्स सम ऑफ द एम्प्लॉयज बाय गिविंग देम इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ समझने वाली है कि कुछ एम्प्लॉयज़ आप अगर उनको इंपॉर्टेंस दे देते हैं देन ऑल्सो दे गेट मोटिवेटेड। देन सम ऑफ द एम्प्लॉयज़ गेट हैप्पी व्हेन दे गेट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे आर एबल टू गिव देयर व्यूज एंड सजेशंस इन मैनेजमेंट एंड दे आर happy to suggest management with various types of ideas and various types of techniques by which they can contribute, or with the smaller efforts or larger effort they can contribute for the welfare of the organization. Now let us understand the very important theory of motivation, that is Maslow's theory. What is Maslow theory of hierarchy of human needs? That is Maslow ने आपकी मोटिवेशन को 5 नीड्स में डिवाइड किया। वन इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी नीड्स, देन सोशल नीड, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब यहाँ पे आपके मास्लो ने इन 5 नीड्स को ऐसे डिवाइड किया कि आपकी एक नीड फुलफिल होने के बाद यू मूव ऑन टू द अनदर स्टेप, और दूसरी के बाद आप तीसरी पे जाते हैं, तीसरी से चौथी पे, चौथी से आप पांचवी पे। बट द हायरार्की ऑफ नीड्स गेट आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट स्टेप यू मूव ऑन टू द सेकेंड के खत्म होने के बाद ही आप थर्ड पे जाते हैं। सो व्हेन फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ अ पर्सन गेट सेटिस्फाइड, यानी कि एक ह्यूमन की फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर की बेसिक नीड्स जब आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तभी वो सेफ्टी नीड्स के बारे में सोचता है। अब फिजियोलॉजिकल नीड्स में आपका फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल गेट्स द नीड्स बाय सेटिस्फाइंग। अब ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन के नीड्स को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। आपके ह्यूमन के लिए फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर बेसिक नीड्स हैं, वेयर एज एक एम्प्लॉय के लिए ऑर्गेनाइजेशन में गुड पे, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन एंड गुड बेनिफिट्स आर द बेसिक नीड्स। देन द सेफ्टी नीड्स में आप एक अगर ह्यूमन है तो आपको फायर, एक्सीडेंट एक्सेट्रा, सिकनेस, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, इन सारी चीज़ों से सेफ्टी चाहिए। वेयर एज इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू ऑल्सो वांट, अब ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सेफ्टी नीड्स क्या होंगी? बाय प्रोवाइडिंग अ सिक्योरिटी एंड पेंशन प्लान्स, इंश्योरेंस प्लान, सेफ एंड हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सेफ्टी नीड्स हो जाएंगी। वेयर एज एक एम्प्लॉय या फिर एक ह्यूमन के लिए सेफ्टी नीड्स होंगी थेफ्ट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट द फिजिकल सेफ्टी ऑफ मर्डर, फायर, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। अब एक ह्यूमन के लिए सोशल नीड्स होंगी दैट सोसाइटी एक्सेप्ट्स हिम, वेयर एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए social need of a person or social need of a human will be of love and affection, association with accepted by the various social groups as well as for friendship, and same with the organization also, that every organization accepts the employees in the organization, and whenever you are a part of organization you get a social recognition in the organization as well. तो एक एम्प्लॉय के लिए social recognition in the organization is a important social need. अब यहाँ पे esteem needs आती हैं। अब what do you mean by esteem needs? social needs के satisfy होने के बाद आपकी esteem आती है। esteem needs में आपकी self esteem as well as esteem of others, दो type of need होती हैं।
जिसमें कि सेल्फ एस्टीम इम्प्लाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑफ सेल्फ एस्टीम. देन एस्टीम ऑफ अदर इज रिकग्निशन, स्टेटस एज वेल एज पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ अचीवमेंट. दैट इज अ एस्टीम ऑफ अदर्स, यानी कि आप दूसरों को दिखावा जो करते हैं या फिर दूसरों की नज़रों में जो अपनी इज्जत पाना चाहते हैं, दैट इज एस्टीम फॉर अदर्स. फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय नीड्स जॉब टाइटल, प्रेज एंड प्रमोशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को चाहिए होता है आपके जॉब टाइटल, प्रेज एज वेल एज प्रमोशन. देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको सेल्फ अकम्प्लिशमेंट या सेल्फ रियलाइजेशन आपका क्या है. अब every employee in the organization wants to end his job when he reaches the top. अब एक अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय एज अ क्लर्क काम करता है, वो एज अ मैनेजर ही रिटायर होना चाहता है. तो दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. मास्लो की थ्योरी के लिए आपके वेरियस एजम्पशंस थे. सम ऑफ देम आर ह्यूमन नीड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ इनटू 5 लेवल्स एज ऑलरेडी टोल्ड. अटेम्प्ट्स टू सेटिस्फाई वंस कैटेगरी एट अ टाइम, यानी कि एक बार में केवल आप एक ही नीड के ऊपर फोकस करेंगे और एक ही नीड को सेटिस्फाई करेंगे. सेटिस्फाई नीड्स नो लॉन्गर इन्फ्लुएंसेस मोटिवेशन. Until lower level needs are satisfied, the higher level needs remain unactive. जब तक आप जिस नीड पे खड़े हैं, जब आपकी वो नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, तभी आपको ऊपर बढ़ने के लिए या फिर ऊपर वाली नीड्स आपकी तभी एक्टिव होंगी. Now the another important theory of motivation is Hesburg theory, or we can say a two-factor theory. अब इस टू फैक्टर थ्योरी में था क्या? इस टू फैक्टर थ्योरी में देयर आर सेटिस्फायर्स एंड देयर आर डिससेटिस्फायर्स. अब डिससेटिस्फायर आर बेसिकली टर्म्ड एज द हाइजीन फैक्टर्स और द सेटिस्फायर आर द मोटिवेशनल फैक्टर्स. अब मोटिवेशनल फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर्स और यू कैन से द डिससेटिस्फायर क्या क्या थे. डिससेटिस्फायर्स और सेटिस्फायर्स के बीच में पहले डिफरेंस समझ लेते हैं. सेटिस्फायर्स का मतलब होता था या सेटिस्फायर्स का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो हमको सेटिस्फाई करती हैं और हमको जॉब में मेंटेन करती हैं, दैट आर द सेटिस्फायर, और इनका दूसरा नाम है मोटिवेशनल फैक्टर्स. देन सेकंड आपका है डिससेटिस्फायर. डिससेटिस्फायर का मतलब होता है हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर, यानी कि हमको उस जॉब में मेंटेन करने के लिए और उस जॉब में कंटिन्यू करने के लिए ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते थे. यानी कि डिससेटिस्फायर, अगर आपके ये फैक्टर्स सेटिस्फाइड नहीं होंगे और आपके मेंटेनेंस फैक्टर या हाइजीन फैक्टर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आप जॉब नहीं करेंगे. Now the two factor theory suggests that if the maintenance factors, or we can say the potent of dissatisfier, and their presence is necessary to avoid dissatisfaction among the employees. अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर कंपनी की पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, टेक्निकल सुपरविजन प्रॉपर नहीं होगा, इंटरपर्सनल रिलेशन विद सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट नहीं अच्छा होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको डिससेटिस्फाई करेंगे टू वर्किंग द ऑर्गेनाइजेशन. अब वर्किंग कंडीशन प्रॉपर नहीं होगी, सैलरी नहीं प्रॉपर होगी, जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, स्टेटस नहीं होगा, पर्सनल लाइफ प्रॉपर नहीं होगी आपकी, यानी डिस्टर्ब रहेगी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से. तो यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो आपका यहाँ पे सर्वाइवल दिक्कत हो जाएगी और आपका सर्वाइवल, यू कैन से योर सर्वाइवल विल नॉट बी एट अ लॉन्गर स्ट्रेच. तो यहाँ पे मेंटेनेंस फैक्टर इसका दूसरा नाम दिया गया है. टू मेंटेन यू इन दैट पर्टिकुलर जॉब, दीज हाइजीन फैक्टर्स हैव टू बी done properly or they are to be maintained in an organization properly. Then comes the motivational factors. अब motivational factors में वो चीज़ें जो आपको मोटिवेट करती है उस जॉब को करने के लिए, जैसे कि फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, रिकग्निशन, चैलेंजिंग वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट एंड इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ. तो ये चीज़ें अगर मोटिवेशन फैक्टर्स, अगर इनको हम मोटिवेशनल फैक्टर्स कहें या फिर हम इनको सेटिस्फायर कहें, तो आप इन फैक्टर्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाइड रहते हैं. और जो आपने हाइजीन फैक्टर्स पढ़े और मेंटेनेंस फैक्टर पढ़े, उनकी वजह से आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना कंटिन्यू करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन लीव नहीं करते हैं. अब जब आप ऑर्गेनाइजेशन लीव नहीं करेंगे तो आप फिर मोटिवेशनल फैक्टर्स पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि वो फैक्टर्स जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में आपका मन लगाते हैं, यानी कि यू गेट सेटिस्फाइड आफ्टर अचीविंग दीज फैक्टर्स. So a motivation seeker must be motivated by primarily the satisfier, that is the job content, while maintenance seeker of get primarily motivated by surrounding of the job, that is the work environment. अब
अगर एक एम्प्लॉय आपका मोटिवेशन सीकर होगा तो वो मोटिवेशन फैक्टर सीख करेगा, वहीं एक आपका अगर मेंटेनेंस सीकर होगा यानी कि वो लॉन्ग टाइम के लिए उस जॉब में रहना चाहता है, वहाँ पे वो मेंटेनेंस फैक्टर्स को सर्च करेगा। सो दिस वॉज मोटिवेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। अब यहाँ पे मोटिवेशन की नीड ऑर्गेनाइजेशन में केवल इसलिए होती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड गोल्स और डिजायर्ड रिजल्ट को प्रॉपरली अचीव करे, और हर एक पर्सन की ये नीड होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी तरीके से अदर देन सैलरी बेनिफिट्स ले। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द एम्प्लॉयज हैप्पी, ताकि अगर एम्प्लॉय खुश रहेगा तो वो अपना एफिशिएंटली वर्क भी करेगा और आपको 100% रिजल्ट देगा। So that concludes the very important section of business studies, that is morale and motivation. Thank you and have a great day.